Hello, good evening, everybody. So, as requested by many of you, I had to simplify a topic that was GST. So, today I am doing that GST simplified. So, see, आज मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता GST के बारे में. So, this is basics for the beginners. जिनको समझ आएगा भी हाँ ये GST सारा दिन अखबार में आता रहता है, ये है क्या चीज़. So we'll begin very simply. We'll say, look at this, why it is a big reform, why GST is a big reform. See, it is said कि यार political unification इंडिया की हुई थी 15th अगस्त 1947 में, right? Political unification happened in 15th August 1947. But the economic unification which made India into one market, 1st July 2017, the date when the great reform was implemented, that was GST. See, political unification के लिए responsible leaders like the great Mahatma Gandhi, Sardar Patel, you can count them on your fingers, Jawaharlal Nehru ji, and all those other leaders, Subhash Chandra Bose ji, right? Then for GST reform, many others apart from these two, the main faces, our own Prime Minister, Mr. Respected Narendra Modi ji, and late Shri Arun Jaitley ji, the finance minister then. Right, so these two were responsible for this great reform known as GST, which was an overhaul, which was a structural reform. So what was so great in it? We'll examine today. But as I said, it is for beginners. So first I would like to tell you something very simple, that what is a tax? क्या समझते हैं हम जी टैक्स से? So tax is a compulsory payment as distinguished from fee. अगर हम फ़ी की बात करें, फीस जो आप जिम की फ़ी दे रहे हो या फिर क्लासेस की फ़ी दे रहे हो कोई, that is different from tax. Tax is a compulsory payment. It is imposed either on income or profit or goods and services production and sale. राइट. सो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट. आपने कमाई करी तो आपको देना ही देना पड़ेगा. दैट इज़ वाई मिस्टर हेयर इज स्ट्रेस्ड आउट कि यार मेरी कमाई गई. बट खुशी किस बात की है? इट इज़ यूज फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच यू पे आइदर ऑन इनकम, प्रॉफिट or production and sale of goods and services, and it is used generally for welfare of people, especially in a welfare or socialist country or welfareist country like India. Right. Going further ji, types of taxes, very basic. There are two basic types of taxes. One is direct tax, one is indirect tax. See, many of you might be very clear with these, but I am aiming for the beginners. So you are very crystal clear with all the concepts. So direct tax is one which is imposed and paid by the same person. Example, income tax. एक ही बंदे पे लागू किया गया और उसी ने पे करा. Indirect taxes are imposed on goods and services, production or sale, and deposited by a third person. For example, service tax. कैसे जी? देखो, विराट कोहली साहब ने आईपीएल में 100 करोड़ रुपए कमाया पूरे साल में. अब इनको टेंशन क्यों हो रही है? बिकॉज जो भी इन्होंने कमाया उसका इनकम टैक्स इन्हें खुद जमा कराना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी में. दैट्स वाई ही सेज ओहो अब खुद जाना पड़ेगा, खुद कराना पड़ेगा. सो ऑल दोज whatever tax was imposed upon him is to be paid by him. That is direct tax. For example, income tax. For example, corporation tax, corporate tax, right? Then indirect tax. धोनी साहब रेस्टोरेंट में गए हैं जी अपनी बीवी के साथ. सो वहाँ से खाना खा के आ गए. इन पे भी सर्विस टैक्स इम्पोज हुआ खाने पे, सर्विस टैक्स. बट did he have to go to the tax authority after going to the restaurant? No. The owner of this restaurant, let's say he was ABC, this Mr. ABC will collect the tax from Mr. Dhoni and will deposit the tax to the tax authorities. So
द टैक्स वॉज बॉर्न बाय हिम, देना इन्होंने ही है, बट डिपॉजिट तीसरा बंदा कर रहा है। और ये किस चीज़ पे लग रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। इस केस में कहाँ पे जी? धोनी साहब डिनर पे गए थे या लंच पे गए थे, उस सर्विस पे लगा उन पे सर्विस टैक्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? सो गोइंग फर्दर, डायरेक्ट टैक्सेस की लिस्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की लिस्ट, लुक एट दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज द क्वेश्चन may stem from that which of the following have been subsumed, which of the following are indirect or direct. Sometimes examinations like state services or let's say other kind of competitive exams ask you which one of the following is not an indirect tax. So we should know that direct tax is income tax, कैपिटल गेन्स टैक्स, ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन होती है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, परक्विजिट्स टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। एंड ये सारों में क्या होगा? ये सारों में जिस बंदे पे इम्पोज किया जाएगा वही इसे पे करेगा, राइट? देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स, राइट? सो please take a snapshot or write it down, this will come in handy. So now about GST, our main thing, GST. So what is GST? First thing, it is an indirect tax. GST is an indirect tax. As I said, indirect tax is imposed upon what? Production and sale of goods and services. So GST itself, the name says goods and services tax. सो सपोज मैं गुड्स बना रहा हूँ और गुड्स बना के आगे बेच रहा हूँ, तो मेरे पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, राइट? जब बिकेंगे तो सेल्स टैक्स लगेगा। अल्टीमेटली बियर कौन करेगा उस ड्यूटी और सेल्स टैक्स को? जो कस्टमर पे कर रहा है उस गुड्स के लिए। बट जब बियर वो कर रहा है, बट पेमेंट कौन करेगा जीएसटी की? मैं करूँगा, राइट? सो इनडायरेक्ट टैक्स, दैट मीन्स बॉर्न बाय वन पर्सन, paid or deposited by another one, right? So GST क्या कर रहा है जी? जो indirect taxes की हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी, इन सारे टैक्सेस को मेजरली बारिंग अपार्ट कस्टम्स, इन सारे टैक्सेस को ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को ये सबस्यूम कर रहा है। सारे टैक्सेस हटा के एक टैक्स हो जाएगा जीएसटी। दैट इज व्हाई वन नेशन वन टैक्स, दिस विल मेक अ कॉमन मार्केट इन इंडिया। नहीं तो इससे पहले क्या होता था जी? लेट्स से गाड़ी पे टैक्स 10% है महाराष्ट्र में, और लेट्स से कोई अदर स्टेट में, लेट्स से भाई गुजरात में 5% है, तो किसी ने 10 करोड़ की गाड़ी लेनी है, उसको 1 करोड़ टैक्स लगना है। बहुत अमीर आदमी है तो 1 करोड़ टैक्स लगेगा महाराष्ट्र में, 50 लाख लगेगा गुजरात में। तो व्हाट विल ही डू? ही विल बाय द कार फ्रॉम गुजरात एंड टेक इट टू महाराष्ट्र। सो व्हाट वाज हैपनिंग? दैट वाज लीडिंग टू imbalanced growth, and that was leading to, let's say, regionalism in development of the nation. So this common market will ensure what? This will ensure that सारे के सारे देश में एक टैक्स लगे और एक ही टैक्स से सारी जगह रेट कॉमन हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, राइट? एंड one more thing to note over here, again very very basic, because it is an indirect tax, it will not subsume or replace any direct tax. हमें पता होना चाहिए कि indirect tax है जीएसटी फॉर बिगिनर्स, वो डायरेक्ट टैक्स को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कभी सबस्यूम नहीं करेगा। सो काइंड्स ऑफ जीएसटी जी, ये अलग अलग तरीके का सीजीएसटी जो सेंटर इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल सेनवैट, सेंट्रल वैट, या फिर एक्साइज ड्यूटी, या फिर कस्टम ड्यूटी, जो सेंटर इंपोज कर रहा था अब वो बदल के सीजीएसटी हो जाएगा, राइट? जो सेंटर इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज कर रहा था, यूनियन गवर्नमेंट कर रही थी, वो सीजीएसटी के नाम से लिया जाएगा। जो स्टेट कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट टैक्स, फॉर एग्जाम्पल लग्जरी टैक्स, ये सारे अब एसजीएसटी के अंदर आ जाएंगे, राइट? दे विल बी नाउ नेम्ड एसजीएसटी। एंड यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, यहाँ पे यूटी जीएसटी लगेगा, राइट? ऑल दोज टैक्सेस विच द यूटी वाज एक्चुअली चार्जिंग, राइट? सो आईजीएसटी,
IGST is not a tax but a system. IGST is इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये बेसिकली क्या होगा जी IGST में, फॉर एग्जाम्पल इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है. लेट्स से भाई हम पंजाब से गुड लेके बंगाल में बेच रहे हैं, वेस्ट बंगाल में. सो इंटर स्टेट ट्रेड में क्या होना था, पहले क्या होता, जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ गुड वहाँ पे कौन सी ड्यूटी लगती है, इस पे एक्साइज ड्यूटी, राइट. लेट्स से सारों का रेट 10% था. सो 100 रुपये का कोई गुड हमने प्रोड्यूस करा, उस पर 10 रुपीज़ एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे लग गई और 10 रुपीज़ सेल्स टैक्स यहाँ पे जब सेल हुआ 10% सेल्स टैक्स बंगाल में लग गया. सो इंटर स्टेट ट्रेड में अब क्या होगा जी, IGST इकट्ठा ही उतने 10% प्लस 10% कलेक्ट हो जाएगा, राइट. इज जस्ट अ सिस्टम कि SGST और CGST को अलग अलग ना इकट्ठा लेट्स से चार्ज करना पड़े. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑल्सो फॉर कंज्यूमर, IGST वुड बी CGST प्लस SGST. जो भी बना इंटर स्टेट ट्रेड में वो IGST के नाम पे कलेक्ट हो जाएगा, राइट. सो गोइंग फर्दर जी, what is GST? One more characteristic is it is a destination based tax. What do I mean by this? So हमारे यहाँ पे पंजाब में कैप्टन साहब की स्टेट में बॉर्न ब्रेड प्रोड्यूस होती है. लेट्स से वो बंगाल में बेचनी है, ममता दीदी को दीदी की स्टेट में बेचनी है. सो अब ये जो ब्रेड बनी है उस पर टैक्स कैसे लगेगा, व्हाट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्शन स्टेट ये है, सेल कहाँ पे हो रही है, वेस्ट बंगाल में. सो GST कहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, कहाँ पे चार्ज होएगा, वेस्ट बंगाल में. व्हाट डू आई मीन बाय दैट, यहाँ से ब्रेड बनी, यहाँ पे जाके बिक गई. लेट्स से भी 100 रुपये की ब्रेड बिकी टोटल, नॉट दिस पैकेट, दिस माइट बी मच मोर चीपर और कॉस्ट इफेक्टिव, बट लेट्स से 100 रुपये की टोटल ब्रेड बिकी. तो जो भी अपना CGST और SGST, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी पहले लगती एंड यहाँ पे सेल्स टैक्स लगता, वैट लगता. सो अब क्या होगा, सीधा का सीधा टैक्स वेस्ट बंगाल में जाके चार्ज किया जाएगा, जहाँ पे वो बिका, जहाँ पे वो गुड की डेस्टिनेशन थी, डेस्टिनेशन स्टेट दैट वाज वेस्ट बंगाल. इन आवर केस द टैक्स वुड बी चार्ज देयर, जहाँ पे वो गुड्स की डेस्टिनेशन थी, राइट. सो वेरी वेरी सिंपल. गोइंग फर्दर जी, एडवांटेजेस ऑफ GST. व्हाट आर दी advantages of GST? First very big advantage is it has removed the cascading effect. Cascading effect is tax on tax. Tax on tax is called cascading effect of taxes. So what do I mean by this? Let's look at a very very simple study. वही एग्जाम्पल मानते कि पंजाब से चल के ब्रेड ने बिकना है वेस्ट बंगाल में, राइट. सो GST regime से पहले क्या होता, दिस टेबल टेल्स यू. वी आर जस्ट अज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ टैक्स, आप ऑक्ट्राई ड्यूटी मान लो या कोई सा भी टैक्स मान लो, जो हर जगह यूनिफॉर्म रेट 10% मांग रहे हैं हम हर स्टेट में. सो लेट्स से भी 100 रुपये की ब्रेड चली पंजाब से, पहले पहुंची हरियाणा, वहाँ पे ऑक्ट्राई ड्यूटी लग गई इस पर 10%. तो इसका दाम कितना हो गया, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगी थी 10%, सो 110 की तो वैसे ही बन गई. एंड जब हरियाणा पहुंची तो 10 रुपये और टैक्स लग गया, बिकॉज 100 रुपये पे 110, सॉरी दिस इज मिसप्रिंटेड, 100 पे 110 होना चाहिए. देन हरियाणा पहुंच के क्या हुआ है जी, 110 पे ऑक्ट्राई ड्यूटी लगी है 10%. सो 110 पे 10% लगेगी तो दाम कितना हो जाएगा, 121. सो नेक्स्ट स्टेट में पहुंच गई, वहां पे फिर से 10% ऑक्ट्राई ड्यूटी लगी, 121 प्लस 12.1, राइट. सो दाम हो गया अपना 133. सो 133 पे फिर 10% लगी. ऐसे करते करते जब बंगाल में पहुंची और वहाँ सेल्स टैक्स लगा तो टोटल हमारी ब्रेड जो 100 की चली थी वो 160.8 रुपीज़ को फाइनल कंज्यूमर या मान लो आपको मिली, बिकॉज हर जगह टैक्स लग रहा था. सो अब इससे मुझे क्या प्रॉब्लम है, कैस्केडिंग इफेक्ट कहाँ पे आया. सो टैक्स किस पे लगना चाहिए, आई सेड प्रॉफिट और लॉस, और या फिर इनडायरेक्ट की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज पे. सो गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगना चाहिए, बट टैक्स पे टैक्स तो नहीं लगना चाहिए. यहाँ कैसे टैक्स पे टैक्स लग रहा है,
लेट्स सी दिस. सो 100 रुपीज़ की ब्रेड पे 10 रुपीज़ सेल्स टैक्स लगा, सो 110 की होगी. सो अब 110 पे गुड कितने का था? 100 रुपये का ही था. जो एडिशनल 10 रुपया यहाँ पे वो तो सेल्स टैक्स था. सो इस एडिशनल 10 रुपये पे जो 1 रुपया टैक्स, दिस टैक्स इज मेड अप ऑफ 10 प्लस 1. 10 is imposed upon the bread which is 100 rupees. This 1 rupee is imposed upon the 10 rupees sales tax imposed in Punjab. 100 रुपए की ब्रेड चली, उस पे सेल्स लेट्स से एक्साइज ड्यूटी लगी, नॉट सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगी थी पंजाब में, पार्डन मी. जब प्रोड्यूस हुआ तो एक्साइज ड्यूटी लगी उस पे 10 रुपए, राइट. सो 100 रुपए की ब्रेड चली, उस पे 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगी. नेक्स्ट स्टेट में जाके जब उस पे ऑक्ट्राई लगी तो वो जो ऑक्ट्राई है वो ना सिर्फ 100 पे लगी, बट जो पीछे उधर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए लगी थी उस पे भी लग गई, इसलिए यहाँ पे 10% 11 आ गया. देन फर्दर इसी पे जाके ना ही सिर्फ 100 रुपए की ब्रेड पे लगी, बट जो पीछे 11 रुपए टैक्स लगा था उस पे भी 10 प्लस 2.1 अपने पास टैक्स लग गया. सो ये 2.1 किस पे लग रहा है टैक्स? ब्रेड पे थोड़ी लग रहा है. ब्रेड पे तो 10 रुपए लगना चाहिए क्योंकि ब्रेड तो 100 रुपए की है. बट ये टैक्स किस पे लग रहा है? 1 एंड 2.1 एंड इधर 3.2, इधर 4.5. जो 10 रुपए के ऊपर जो टैक्स लगी जा रहा है 10% में, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स. इससे क्या हो रहा है जी? इससे ब्रेड का दाम बहुत महंगा हो रहा है. ये तो होता था जीएसटी से पहले. अब जीएसटी के टाइम पे क्या होता है जी वो देख लेते हैं. लेट्स से जीएसटी का दाम इन्होंने परसेंटेज रख दिया थोड़ा, ये 10% है ना, जीएसटी को हम 30% मान लेते हैं, लेट्स से 36% मान लेते हैं, कोई बात नहीं. सो अब 100 रुपए की ब्रेड पे आई सेड डेस्टिनेशन टैक्स है. पंजाब से चलेगी, बंगाल पहुंचेगी, फ्रॉम पंजाब टू बंगाल. अब बंगाल में 36% टैक्स लग जाएगा. जीएसटी इज 36%. सो 100 रुपए की ब्रेड पे कितना टैक्स लग गया? 36. सो आपको कंज्यूमर को कितने की मिल गई? 136. यहाँ पे कितने की मिल रही थी? 160.8. वहाँ पे कितने की मिल गई ड्यूरिंग द जीएसटी रेजिम? 136. सो इवन 36% टैक्स हमें सस्ता पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेस की जगह सिर्फ एक टैक्स है. सो ईजियर कंप्लायंस, मॉडरेशन ऑफ इन्फ्लेशन, benefit for the consumer is expected out of GST. I hope you got the point. अगर नहीं समझ आता है तो please keep commenting your doubts in the comment section. I'll be sitting with you, I'll be helping you, I'll be destroying your doubts in the comments. So please feel free to share your doubts. Right? So अब इसकी दूसरी एडवांटेज क्या है जी? ब्लैक मनी प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस्ड. कैसे जी? हाउ दिस कैन बी actually said? Let's try to find out. So let's say भाई मुझे पहले ये A एक फैक्ट्री है, देन B उसका होलसेलर है, एंड C उसका रिटेलर है, D उसका कंज्यूमर है, राइट. सो लेट्स से भाई ABCD फैक्ट्री में बना. लेट्स से क्या बनाना है फैक्ट्री में? लेट्स से वी मेक अ टैब. जो मोबाइल टेबलेट्स आते हैं वो टैब बना रहे हैं हम लोग. सो यहाँ से 10,000 रुपये का बना, 10,000 का बना. सो 10,000 से बन के 10% इस पे, लेट्स से अगेन 10% फॉर सिंप्लीफिकेशन, क्या लगेगी? एक्साइज ड्यूटी प्री जीएसटी रेजीम में. सो ये हो गया जी आपका 10,000 पे 10% लगी तो 11,000 रुपये का हो गया. अब इस बंदे ने अपनी वैल्यू ऐड करी और उस पर टैक्स लगा दिया, लेट्स से भाई आगे सप्लाई करने का, तो 11,000 पे लेट्स से भी इसने 1,000 अपनी वैल्यू ऐड करी, एंड लेट्स से 10% और टैक्स लगा 12,000 पे, तो 1,200. सो अब कितने का हो गया जी? 13,200. सो इस बंदे ने अपनी लेट्स से भी 1,500-1,800 रुपये वैल्यू ऐड करी. सो 1,800 वैल्यू ऐड, 15,000. अब 15,000 पे 10% फिर से टैक्स लगा, so that becomes 10%, that is 1,500, 16,500.
सो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास गुड पहुंच रहा है 16,500 पे। यहाँ टैक्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे 10% लगा, 1,000 रुपये यहाँ ऐड हो गया, राइट। एंड देन 1,200 रुपये यहाँ पे ऐड हो गया टैक्स, 1,500 रुपये यहाँ पे ऐड हो गया। सो कितना सारा टैक्स लग गया। अगर ये बिल के साथ लेगा ये टैब, लेट्स से दिस डी पर्सन बाइज द टैब विद अ बिल, सो इसको कितना टैक्स लग जाएगा, 1,000 रुपये यहाँ पे, 1,200 यहाँ पे, 1,500 यहाँ पे। अब दूसरी तरफ ब्लैक मार्केट कर रहा है एक बंदा, वो बिल नहीं देता होलसेलर को, सो अपना 1,000 रुपये टैक्स बचा लेता है। होलसेलर भी रिटेलर को बिल नहीं देता, वो अपना कितना था हमारा 1,200 रुपये टैक्स बचा लेता है। देन रिटेलर भी कस्टमर को बिल नहीं देता, वो कस्टमर का 1,500 बचा लेता है। कस्टमर को कितना बच गया, 2,700 एंड 3,700, 3,700 बच गया। सो वही मोबाइल ये बंदा 16,500 का ले रहा है, ये 16,500 से लेसर 3,700 का ले रहा है बिना बिल के। सो बिना बिल से क्या हो रहा है, ये सरकार का हम टैक्स चोरी कर रहे हैं। सो टैक्स चोरी से क्या होगा, सरकार का तो नुकसान होगा ही होगा, बट कस्टमर का भी तो नुकसान होगा। बिना बिल के आपने टैब ले लिया अगर, तो उसकी गारंटी कहाँ से आएगी, देयर वुड बी नो गारंटी। कल को खराब हो गया, आप कोई क्लेम नहीं ले सकते। इवन इफ यू गो टू कोर्ट आपको कोई क्लेम नहीं मिलना, बिकॉज यू डोंट हैव द बिल, राइट। सो अब जीएसटी के साथ क्या होगा वो देख लेते हैं। सो जीएसटी के साथ लेट्स से वही ए बंदे ने बनाया, ए बंदे ने डाला जी इसमें 10,000 का बनाया था, इसको लेट्स से इसने 1,000 रुपये टैक्स दिया। देन बी बंदे ने वही अपना 1,200 रुपये टैक्स दिया। देन सी बंदे ने अपना 1,500 रुपये टैक्स दिया। सो बट अब ये वैल्यू एडिड टैक्स है जीएसटी, और इसमें आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है। दैट मीन्स व्हाट, लेट्स से भाई ये वाले बंदे ने, चलो इसने 0 से बनाया, इससे मानते हैं। सो इस वाले बंदे ने लेट्स से 1,200 रुपये टैक्स भरा, 1,200 रुपये टैक्स रिसीव करा है जी कस्टमर से, अपने रिटेलर से, और इसने पहले कितना टैक्स भरा हुआ है, 1,000 रुपये। सो ऑन इनपुट ही हैज़ पेड 1,000, ही हैज़ रिसीव्ड 1,200। So how much tax does he have to deposit now? 200. Let's consider for this person. He has paid 1,200. Now he has received 1,500. How much does he pay? 300. What does that mean? Let's say भी मैंने इनपुट पे करा, जब मैंने सामान खरीदा आगे बेचने को, तो मैंने पे करा 1,000 रुपया उस पे टैक्स, राइट। देन जब मैंने आगे सामान बेचा तो मेरे कस्टमर ने मुझे दिया 1,500 रुपया। सो 1,000 रुपया मैं पहले ही दे चुका था, 1,500 रुपये मुझे रिसीव हुआ, तो मैंने टैक्स अथॉरिटी को कितना देना है, 1,500 नहीं देना, सिर्फ 500 डिपॉजिट कराना है। दैट इज़ कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, राइट। सो इससे क्या फ़ायदा होगा, जब ये बंदा आगे बेचेगा तो ये बोलेगा यार मुझे बिल दे देना, नहीं तो मेरे को ये टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा मुझे पूरे 1,500 देने पड़ेंगे। एंड जब अगर ये बिल देगा तो आगे भी बिल देगा, बिकॉज ही वुड हैव टू से कि भाई मुझे रिसीव हुआ। एंड वाई वुड द कस्टमर माइंड दैट, बिकॉज कस्टमर को ऑल दो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट एज वी प्रूव्ड अर्लियर प्री जीएसटी से सस्ता हो जाएगा, बिकॉज टैक्स ऑन टैक्स खत्म हो जाएगा एंड विद बिल उसे गारंटी भी मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, जीएसटी के साथ एंटी प्रॉफिटेरिंग एजेंसी भी बनाई गई है। एंटी प्रॉफिटेरिंग, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, हमने पीछे बात करी थी कि जो 160 रुपये की ब्रेड है वो अब हमें शायद 130 की मिलनी चाहिए। सो ये जो बेनिफिट होगा जीएसटी का वो कस्टमर को पास ऑन हो जाए। ऐसा ना हो कि ब्रेड वाला मालिक या ब्रेड वाला प्रोड्यूसर या रिटेलर या होलसेलर अपना प्रॉफिट बढ़ा के कस्टमर को 160 रुपये की ब्रेड बेचता रहे कि चलो तुम्हें तो इतने की आ रही थी तुम खाओ। सो जो जीएसटी का बेनिफिट है उसको कस्टमर पे पास ऑन करने के लिए एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी बनाई गई है। और इस ऑल के थ्रू, बिकॉज जीएसटी इज टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड, इस ऑल के थ्रू एक्सपेक्टेड है कि ब्लैक मनी की फ्लो रिड्यूस हो जाएगी, राइट। सो देन फर्दर जी व्हाट विल हैपन विद जीएसटी, मेक इन इंडिया विल बी फैसिलिटेटेड, बिकॉज
because it will facilitate ease of doing business. मेक इन इंडिया एंड वन नेशन वन मार्केट, ईजियर हो जाएगा यहाँ पे प्रोड्यूस करना, बिकॉज यहाँ पे टैक्सेस की जो प्रोसीजर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होने प्रोबेबल हैं, बिकॉज जीएसटी इज टोटली लिंक्ड विद टेक्नोलॉजी एंड probably motivating or ensuring cronyism is probably much more difficult, right? So going further जी, ease of doing business, as I said, ease of doing business में इंडिया का रैंक बहुत ही बढ़िया हो गया। 2014 में 142 था, 2020 में 63 हो गया। Who publishes the ease of doing business report? If you know, please tell me. Right? So इंडिया ने इतना अच्छा इम्प्रूव करा है अपना रैंक. One of the reason is GST. One of the reason is GST, and it is in nature of structural reform. Structural reform. See one more thing यार, ये beginners के लिए शायद थोड़ा ना पता हो, but I'll try to simplify it as well. See, there is one kind of reform called structural reform. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब भी होता है तो देश की इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल या गवर्नेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, बदलता है. सो वी आर सिटिंग इन इनर्शिया. हमें वही पुराना सेल्स टैक्स और उसको मोटिवेट करने के या लूप होल्स ढूंढने के तरीके थे. अब एकदम से जीएसटी आ जाएगा तो हमें क्या लगेगा, यार ये क्या हो गया. सो जब भी कोई स्ट्रक्चरल चेंज आता है ना इकोनॉमी में, सो देर इज़ ऑलवेज रेजिस्टेंस, देर इज़ ऑलवेज let's say protest. So you might have seen कि GST ये है, GST वो है, but in the medium to long term GST is definitely going to benefit this country, right? So going further, what are the challenges to GST? अभी क्या challenges हैं जी? मल्टीपल स्लैब्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम. सो अभी हमारे फेडरल प्रिंसिपल्स करके हम एक यूनिफाइड रेट पे अग्री नहीं कर पाए हैं, एंड उस वजह से हमारे जीएसटी में बहुत सारी स्लैब्स हैं. बल्कि देखा यह जाता है कि जहाँ भी दूसरी नेशंस में जीएसटी टाइप का वन नेशन वन टैक्स है, वहाँ पे एक ही रेट है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. कुछ गुड्स पे 5%, कुछ पे 0, कुछ पे 18. सो ऑल दोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज विच फॉर्म एज अ चैलेंज, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल किटकैट लगा लो यार. अब लेट्स से भाई किटकैट अब चॉकलेट है कि किटकैट बिस्किट है. किटकैट और बर्बन को अगर आप कंपेयर करो तो किटकैट में बाहरली साइड चॉकलेट है और अंदरली साइड बिस्किट है. बर्बन में या बॉर्बन जो हम बोलते हैं उसमें बीच में चॉकलेट और बाहरली साइड बिस्किट है. सो लेट्स से भी बिस्किट्स पे 5% जीएसटी है और चॉकलेट पे 12% है. सो अब आप किटकैट को अगर चॉकलेट मानते हो तो बर्बन को भी तो चॉकलेट मानना चाहिए, ऊपर नीचे का डिफरेंस है. सो बट किटकैट वाला चाहेगा मेरे किटकैट को बिस्किट मान लो, क्योंकि मेरे पे टैक्स कम लगेगा, मेरी बिक्री ज़्यादा होगी. अब कौन डिसाइड करेगा? द अथॉरिटीज. एंड वेयर देर इज मोनोपोली, देर इज अ चांस ऑफ करप्शन. सो दीज काइंड्स ऑफ चैलेंजेस स्टिल एग्जिस्ट. एंड वन मोर थिंग इज वैट इज रिमेनिंग ऑन ऑयल. आप रेट नीचे करना चाहते हो, आप इन्फ्लेशन मॉडरेट करना चाहते हो, बट स्टिल वन ऑफ द प्रीवियस regime taxes, that is value added tax, is remaining on one of the most essential commodities, that is oil. अब कोई भी गुड आपने ट्रांसफ़र करना है, हमारे वाला एग्जांपल ही ले लो. बंगाल से, पंजाब से बंगाल ब्रेड जा रही है. सो अब ब्रेड जाएगी तो ट्रक पे जाएगी, या कम क्वांटिटी होएगी तो लेट्स से भी टाटा के छोटे हाथी पे जाएगी, right? So whatever it is riding upon, it is using oil or energy which is generally produced from oil, right? So अब oil पे वैट लगा हुआ है. अब आप देख सकते होगे यार, चंडीगढ़ में पेट्रोल सस्ता है, पंजाब में महंगा है, वैट का फ़र्क. और पेट्रोल और डीजल तो हर किसी को चाहिए, असेंशियल है बिजनेस के लिए भी. सो वैट जब तक रिमेनिंग है ऑयल पे, सो असली मॉडरेशन ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होगा. असली जो जीएसटी का कोर है, क्रक्स है मॉडरेशन ऑफ इन्फ्लेशन, वो बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, बिकॉज वैट इज स्टिल देयर, एंड दैट टू ऑन अ वेरी वेरी एसेंशियल कमोडिटी, राइट? सो चैलेंजेस में जी फर्दर देर आर टेक्निकल ग्लिचेस जो हमने देखा होगा. जीएसटीएन नेटवर्क जो है
और GS टिन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GS टिन, इनमें थोड़ी टेक्निकल एरर्स हैं. Although with time they are going to get better, but there are technical glitches also with GST and their network based issues. कभी हैंग हो जाता है, कभी चलता नहीं. आपने देखा होगा लैडिंग बिल नहीं निकल रहा जी, मेरे टैक्स गलत लग के आ गया है जी. So everybody is confused a bit, but that happens with new reforms, right? Then one more challenge यार, ये थोड़ी सी बड़ी बात है थोड़ी, but फाइनेंस कमीशन क्या करता है, डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर. सेंटर के जो टैक्सेस है वो सेंटर डिवॉल्व कितने करेगा, फाइनेंस कमीशन बताता है, राइट. एंड वन ऑफ द मेजर चंक ऑफ टैक्सेस इज जीएसटी. एंड जीएसटी को डिसाइड करने वाला कौन है अब, रेट और क्या होगा क्या नहीं होगा जीएसटी के साथ, जीएसटी काउंसिल. सो नाउ देयर आर टू बॉडीज डीलिंग विद टैक्सेस, फाइनेंस कमीशन एंड GST Council. Earlier there was Planning Commission, that was an executive body which was said to rule over a constitutional body, that is Finance Commission. Now what is happening? There is one Finance Commission who recommends for taxes, one GST Council who decides GST. So there is no common area or no common platform where they sit together, the GST Council and Finance Commission, and decide for better coordination for devolution or distribution of taxes. So now we need this bridge which can lead to better coordination between these two bodies, right. So going further ji, what are the expected good things or results of GST? Since it was for only beginners, so I am just giving you the basics, right. So moderation of inflation is expected, as we talked about, bread सस्ती हो रही है. It is said that with GST about 2% of GDP increase is expected, right. So then going further, how this is expected, better compliance हो जाएगी जी. Next point is that better compliance, tax की चोरी कम, efficient taxation. So it is expected कि GST के आने से GDP में acceleration आएगी. Then how consumer welfare, it is simple for everybody to guess. Moderation of inflation होएगी, चीज़ें सस्ती होएंगी, बिल के साथ होएगी तो आपका हक बढ़ेगा, और बेटर ट्रेल होएगी, सो आपका बेटर वेलफेयर होएगा, राइट. सो this is for the good of everybody. It is a structural reform. It will take time to reap benefits, but we should support this system. And structural reform को समझना चाहिए हमें कि यार सिर्फ हर टाइम ओपनिंग अप नहीं कर सकते हम, हर टाइम लिबरलाइजेशन नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ डेफिनेट पैटर्न. एंड दिस टाइम वी रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच विल मेक द structure of our country, administration of our country more robust, more transparent, and more, let's say, egalitarian for everybody. So GST is one such reform which will reap benefits in medium to long term, that is 3 to 5 years. See, now COVID is there, but we may still calculate the benefits. Let this COVID conundrum get over, we will reap the benefits of GST, and I expect that gradually and slowly our country will come out of the, let's say, the infamous list of being the highly corrupt countries. And such kind of reforms and such kind of steps will help us form a more robust economy where there is equality, where there is prosperity, where there is happiness. So thanking you all. I hope you understood GST, and I hope you continue following and appreciating. Thank you so much for all your appreciation. This is Anmol Mehta signing off. Thank you.